Hi students, I am going to recite a poem, One Little Kitten. Listen it carefully. One little kitten, two big cats, three baby butterflies, four big rats, five fat fishes, six sad seals, seven silly seagulls, eight happy eels, nine nervous lizards, 10 brave bees, 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. This poem tells about different animals. Today we are going to learn about different animals, their habitats and babies, etc. Do you love animals? Yes, I love two animals. Now let us see. There is a variety of animals around us. Some are big while some are small. Some live in forest while some are found just around us. Some animals live in water, some jump and run on land. Some of them fly in the air. Some animals like polar bears and reindeers live in snow. We can see in picture there are the animals hen, blackbuck, fish, hawk, pigeon, lizard, wolf, sparrow, spider, lion, bear and snail. These are the different animals live around us. Some of them are big and some of them are small. Some animals like dogs, cats and sheep have hair on their bodies. Do you have hair on your body? Yes or no? कुछ एनिमल्स के बॉडीज़ पे हेयर होते हैं, जैसे डॉग के, कैट पे और काऊ पे और बाबा ब्लैक शिप पे। तो आपकी भी बॉडी पे हेयर है? यस और नो? आंसर दीजिए। ओके, सम एनिमल्स लाइक cows, deer and goats have horns on their heads. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं काऊ, डियर, गोट, इनके हेड पे हॉर्न्स होते हैं, मतलब सींग होते हैं। Most of the animals have ears outside their bodies. Some animals like elephants, rabbits, deer and rats have large ears. कुछ एनिमल्स के ईयर जो है बॉडी के बाहर की तरफ होते हैं, जैसे एलिफेंट्स, रैबिट्स, डियर, रैट्स, इनके ईयर्स जो होते हैं बहुत ही लार्ज होते हैं। You cannot see the ears in some animals like fish, hens and frogs. तो हम इनके ईयर्स नहीं देख पाते, जैसे फिश के, hen के, फ्रॉग के। Now here is the activity. Try to find out if the animals having ears outside their bodies also have hair on their bodies. Write the names of two such animals. Do we also come in the same category? Yes or no? Can you tell me? तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी है। इसमें आपको क्या करना है, उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके ईयर्स हमें बॉडी के आउटसाइड एरिया में दिखाई देते हैं और जिनके बॉडी पे हेयर भी होते हैं। तो उन ऐसे दो एनिमल्स के नाम आपको लिखने हैं। कंप्लीट दिस एक्टिविटी इन योर ईवीएस कॉपी। नाउ listen. Many animals have tails which they use in different ways. Monkeys use their tail to hold branches of the tree. Kangaroo uses its tail to balance and as a stool. Cows and horses use their tails to get rid of flies. Cats, dogs and lions use their tails to tell how they feel. Scorpion uses its tail as a weapon. तो यहाँ पे टेल का जो है डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं, कौन से एनिमल्स किस टाइप से यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मंकी जो है ट्री के ब्रांचेस पकड़ने के लिए अपनी टेल का यूज़ करता है, अपनी पूंछ का यूज़ करता है। कैंगरू जो है अपना बैलेंस बनाने के लिए यूज़ करता है। काउज और हॉर्सेस जो है फ्लाइज से, मतलब मक्खियों से परेशान जब होते हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए वो अपनी पूंछ हिलाते हैं। और कैट, डॉग और लॉयन जो हैं वो अपनी पूंछ जो यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, कि वो अपनी फीलिंग बताने के लिए। और जो स्कॉर्पियन होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ वेपन अपनी टेल को यूज़ करते हैं। वेपन मीन्स हथियार के तौर पे यूज़ करना। नाउ सी, all birds have wings which they use for flying. Bats and some insects also have wings. सब बर्ड्स के पास उनको उड़ने के लिए क्या होते हैं, विंग्स होते हैं।
और बैट्स और कुछ इंसेक्ट्स के पास भी विंग्स होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सके। एग्जाम्पल्स आर फॉर बर्ड्स pigeon, sparrow, owl, eagle, bat and for insect fly, mosquito। फ्लाई आपको पता है ना, जो आपके घर में आते हैं जिसे हाउस फ्लाई भी बोलते हैं, और मॉस्किटोज तो आपको पता ही होंगे। Activity 2. Look carefully at the animals that you see around your house or near your school. Name 2 animals of each type that have the following features. फर्स्ट वन इज हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जिनके बॉडीज पे हेयर होते हैं, जैसे काऊ, रैबिट। नेक्स्ट है डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। ऐसे एनिमल्स के जिनके बॉडी पे हेयर नहीं होते, जैसे एलिफेंट, क्रोकोडाइल। हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड। जिनके हॉर्न्स होते हैं, जैसे बफेलो, बाबा ब्लैक शीप। डू नॉट हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स। जिनके हॉर्न्स नहीं होते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे डॉग, मंकी। नेक्स्ट है यू कैन सी देयर ईयर्स। जिनके आप ईयर्स आप देख सकते हो उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट। यू कैन नॉट सी देयर ईयर्स। ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने जिनके ईयर्स आपको दिखाई नहीं देते, जैसे फ्रॉग, स्नेक, फिश, बर्ड। हैव टेल्स। जिन एनिमल्स की टेल्स होती है उनके नाम आपको लिखने हैं, जैसे डॉग, मंकी। डू नॉट हैव टेल्स। जिनके टेल्स नहीं होती, जिनकी पूंछें नहीं होती, जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग, मैन, वुमन, फ्रॉग। इनकी टेल नहीं होती। हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग। फ्लाई करने के लिए किनके विंग्स होते हैं? बर्ड्स के, है ना। स्पैरो, पैरेट, आउल। इनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। They are found on land, flying in the air, on the trees, in ponds and lakes also. Here are the water animals. Which are they? Fish, duck, tortoise and crocodile. These are water animals. They live in water. तो एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? लैंड पे भी रहते हैं, और एयर में भी फ्लाई करते हैं, और वाटर में रहते हैं। तो वाटर एनिमल्स कौन से हैं? फिश, डक, टॉर्टोइस एंड क्रोकोडाइल, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। नाउ एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। एलिफेंट, डियर, टाइगर, sheep, goat एंड zebra. These animals live on land. जैसे इनमें से कुछ एनिमल्स, जैसे एलिफेंट, डियर, टाइगर, जेब्रा, ये जंगल में रहते, फॉरेस्ट में रहते, और कुछ एनिमल्स हम डोमेस्टिक एनिमल्स है, जैसे शीप, गोट। तो ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं? लैंड पे। नाउ एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। ट्रीज पे कौन से एनिमल्स रहते हैं? मंकी, स्क्वेरल, पैरेट एंड हनी बीज। ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ट्री पे। आपने इनको देखा ही होगा, मंकीज तो आपके यहाँ आते ही होंगे, है ना। स्क्वेरल कितनी क्यूट होती हैं, जो ट्री पे इधर उधर भागती रहती हैं। वो छोटी छोटी सीड्स खाती है, फ्रूट्स के अंदर के सीड्स खाती है, फ्रूट्स खाती हैं। और पैरेट जो है वो हमारी इमिटेशन, हमारी नकल बहुत अच्छे से करता है। और हनी बीज हमें क्या देती है? हनी देती हैं। एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर। एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो एयर में फ्लाई करते हैं, जैसे काइट, ईगल, क्रो, मैना एंड स्पैरो। ये बर्ड्स जो है ये भी एक एनिमल्स ही होते हैं, बस इनके विंग्स होते हैं। सिर्फ ये एनिमल्स जो है उनके फेदर्स होते हैं, इसलिए वो एयर में फ्लाई कर सकते हैं, जैसे काइट, ईगल, क्रो, मैना, स्पैरो, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। है काव काव करता रहता है, और स्पैरो कैसे करती है? ची 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 ची, है ना। और जो मैना होती है वो भी बड़ी प्यारी होती है। नाउ नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जो अभी हमने सीखा उसमें से आपको ढूंढ के इनके नेम्स लिखने हैं। जो एनिमल्स एयर में फ्लाई करते हैं उनके नेम आपको लिखने हैं, और जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके नेम्स आपको लिखने हैं, और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके नेम्स आपको ये लिखने हैं। तो ये आपका टेस्ट है, इसलिए ये टेस्ट देने से पहले आपको ये लेसन अच्छे से लर्न करना है। नाउ लेट अस सी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, बर्ड्स कहाँ रहती है? नेस्ट में। फिश, वाटर, काऊ, शेड, स्नेक, होल, कैमल,
desert, dog, kennel, elephant, forest, monkey, tree, penguin, Antarctica. अंटार्कटिका कहाँ है? अंटार्कटिका इज द साउदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट। वहाँ पे पेंगुइन्स रहते हैं। और लॉयन कहाँ रहता है? डेन में। तो ये जो है एनिमल्स का हैबिटेट है, ये आपको लर्न करना है। You have to learn animals and their habitats and solve this activity. Where are these animals found? Take them to the correct places. यहाँ पे जो एनिमल्स और उनके प्लेसेस दिए हुए हैं उनको आपको मैच करना है। जैसे मंकी, क्रो, स्क्वेरल, पैरेट कहाँ रहते हैं? ट्री पे। काऊ कहाँ रहती है? शेड में। और डक कहाँ रहती है? वाटर में। डियर कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। तो आपको यहाँ पे जो दिए हुए हैं उसे मैच करना है। फिश कहाँ रहती है? फिश इज द वाटर एनिमल। तो आप इनको मैचिंग कीजिए। लेट अस लर्न अबाउट एनिमल एंड देयर बेबीज। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज। मोस्ट बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जैसे काऊ एंड काफ, sheep and lamb, duck and the ducklings, hen and chick, goat and kid, mare and foal। तो जो एनिमल्स के बेबीज होते हैं वो मोस्टली कैसे दिखते हैं? अपने पेरेंट्स की तरह। तो आपको इनके नेम लर्न करने हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट एनिमल्स एंड देयर साउंड। तो पिजन्स के साउंड को बोलते हैं कू, मंकीज के साउंड को बोलते हैं चैटर, लॉयंस रोर, पिग्स के साउंड को क्या बोलते हैं? ग्रंट, काउस के साउंड को बोलते हैं मूव, डॉग्स के साउंड को बोलते हैं बार्क, हॉर्सेस के साउंड को बोलते हैं ने, डक्स के साउंड को बोलते हैं क्वैक, वुल्स के साउंड को बोलते हैं हाउल, बर्ड्स के साउंड को बोलते हैं चिर्प, बीज के साउंड को बोलते हैं बज, कैट्स के साउंड को बोलते हैं म्याऊ, फ्रॉग्स के साउंड को कहते हैं क्रोक, हेन्स के साउंड को बोलते हैं कैकल, आउल्स के साउंड को बोलते हैं होट, माइस के साउंड को बोलते हैं स्क्वैक और शीप के साउंड को क्या बोलते हैं? बा। यू हैव टू लर्न दिस। Now let us learn about all animals are not wild, some animals are tame. They help us in many ways. They live on farms or in our backyards. We call them domestic animals. है ना, कुछ एनिमल्स जो जिनको हम अपने आंगन में रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। Like horses, cows, sheep, ducks, hens, dogs and cats are domestic animals. Elephants, camels, horses and donkeys are tame animals. We teach them to work for us. Horses, bullocks and camels pull carts and wagons. Donkeys carry load for us. Elephants can be trained to pull heavy logs. They are also used to transport goods in thick jungles. Dogs have a very good sense of smell. They help us to guard our homes. तो देखा बच्चों, ये एनिमल्स हमारे लिए कितनी यूज़फुल हैं। हम उनको ट्रेनिंग देकर उनसे ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। वो हमारी इस तरह से हेल्प करते हैं। Cows, goats and buffaloes give us milk. How many glasses of milk do you drink every day? कितना पीते हो आप दूध? Daily you have to drink 2 glasses of milk. We make many things with milk. हम कौन सी चीज़ें बनाते मिल्क से? पनीर, चीज़, बटर। Hens and ducks give us eggs to eat. Eggs can be cooked in many ways. Eggs are good for our health. Some people eat the flesh of animals such as hens, goats and fish. कुछ लोग जो हैं एग्स खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं कुछ एनिमल्स का, जैसे हेंस का, गोट्स का, फिश का। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं। जैसे मिल्क, एग्स जो हमें कौन देता है? एनिमल्स देते हैं। तो एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। हनी बी मेक्स हनी फॉर अस. Honey is good for us to eat.
A bee takes the sweet juice from a flower to its hive. Here it makes honey from it. तो इस तरह से हनी बी जो है फ्लावर से जूस लेती है और अपने छत्ते में कलेक्ट करती है और उससे ही वो हनी बनाती है। तो हनी जो होता है हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो आपको ज़रूर हनी खाना चाहिए। बच्चों को तो हनी बहुत पसंद है। नाउ अदर एनिमल्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। हाउ दे हेल्प अस? सी, द sheep provide us with wool. Wool is used to make woolen clothes to keep us warm in winter. जो बाबा ब्लैक शिप होती है, जो शीप होती है, उसके जो हेयर होते हैं जिसे ऊल बोलते हैं, उससे हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं और वो वुलन क्लोथ्स हमारे लिए विंटर में बहुत ही यूज़फुल होते हैं और वो हमें गर्माई देते हैं, वो हमें वार्म रखते हैं, इसलिए हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। We get silk from the silkworm. The silkworm makes a cocoon. We get silk thread from a silk cocoon. Reels of silk thread are used to make cloth. तो सिल्कवर्म जो है हमें सिल्क देता है, उससे हम क्लॉथ बनाते हैं, जैसे सिल्क साड़ी, सिल्क का सूट जो आपकी मम्मी पहनती हैं। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स बोथ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक इज यूज टू मेक लेदर। तो कुछ एनिमल्स की स्किन भी यूज़ की जाती है, किस लिए? लेदर बनाने के लिए। तो उस लेदर के शूज़ बनते हैं, बेल्ट बनता है, पर्स बनते हैं, वॉलेट्स बनते हैं। तो इस तरह से हमें एनिमल्स बहुत यूज़फुल हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट व्हाट एनिमल्स ईट। जैसे हमें जीने के लिए खाने की ज़रूरत है, इसी तरह से एनिमल्स को भी है ना। एनिमल्स नीड फूड टू लिव। सम वाइल्ड एनिमल्स ईट ग्रास, लीव्स और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो एनिमल्स को भी हमारी तरह खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ वाइल्ड एनिमल्स क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, या फिर जो फ्रूट्स उनको फॉरेस्ट में मिलते हैं वो ये खाते हैं। सम एनिमल्स किल एंड ईट अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड हंटर्स। सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स। तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं और उनको खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हंटर्स। और कुछ एनिमल्स जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे फ्रॉग। Vultures and hyenas eat the flesh of dead animals and remains from other animals hunt. तो vultures और जो हैनाज होते हैं वो क्या करते हैं? जो डेड एनिमल्स है, जो ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स है, उनका फ्लैश खाते हैं। We have learned about the what animals eat. Now see the activity. Let us make a paper cat. Take a square paper, fold it as shown in step 1. Then fold the tape as shown in step 2. Fold the lower part inward from both sides as shown in step 3. Now look at the back side. It looks like the face of a cat. Draw eyes, mouth, nose and whiskers. Your cat is ready to play with you. जैसे पिक्चर में दिखाई गई उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए और पेपर कैट बनाइए। Here are some exercises you have to do. फर्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। तो एक कॉलम में एनिमल्स के नेम्स है और दूसरे कॉलम में जो वो काम कर सकते हैं, वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, वो है, उनसे आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस, राइट द नेम्स ऑफ 4 डोमेस्टिक एंड 4 वाइल्ड एनिमल्स। तो 4 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे और 4 वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखने हैं। हाउ डज एन एलिफेंट वर्क फॉर अस? हमें हमारे लिए एलिफेंट किस तरह से काम करता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेम 5 थिंग्स वी कैन मेक फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, तो कम से कम 5 चीज़ों का, 5 थिंग्स का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ये वर्कशीट आपको अपनी खुद करनी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। एलिफेंट्स हैव डैश ईयर्स, स्मॉल, लार्ज और नो। इनमें से जो सही है वो उस आंसर को आप टिक करेंगे। स्कॉर्पियन यूजेस इट्स टेल एज अ स्टूल, लेम और वेपन। यू कैनॉट सी द ईयर्स ऑफ डैश, फ्रॉग, कैट और काऊ। करेक्ट ऑप्शन है, उसे आप
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखोगे। नेक्स्ट है हैज़ हेयर ऑन इट्स बॉडी, शीप, फिश, स्नेक। इनमें से किसकी बॉडी पे हेयर होते हैं? तो जो करेक्ट ऑप्शन आपको कहाँ पे लिखना है? इन ब्लैंक स्पेसेस में। नाउ द समरी ऑफ द लेसन। एनिमल्स आर लिविंग क्रिएचर्स। एनिमल्स कैन ब्रीथ. They need air, water, and shelter. Different animals have different food habits and features. Animals who are friends of humans are called domestic animals. Animals who live in forest are called wild animals. तो ये चीज़ें हमने इस लेसन में लर्न की। Here is the poem for you. Baba, black sheep, have any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for the master and one for the dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba, black sheep, have any wool? Yes, sir, 3 bags full. Okay, students, thank you so much. Bye bye. Thanks for watching.